So students, now the next concept for your macroeconomics is government budget. So what is government budget? So first of all, you should know that government budget is a estimated receipt and anticipated expenditure under a various heads during a fiscal year. That means in a fiscal year, how much governments want to earn and how much it is going to spend. So it is an anticipated, that means for future year, coming year. So government budget is a item wise government's receipts and expenditure during a fiscal year, generally from 1st April to 31st March. So this is point to be noted that this is for the coming year, what government is going to earn and how much government is going to be spent. So for the objective, what are the objectives of government budget? So first objective you can see here is redistribution of income and wealth. So generally for the government aims to reduce such inequalities of income and wealth. Various measures it has to be adopted for the redistribution of income and wealth, such as government used to give some welfare scheme, reduce income of the rich by imposing more taxes and giving those benefits for the poor section of the society. So this is redistribution of income and wealth. The government imposes tax on rich people and give subsidy to poor people. So this is the redistribution of income and wealth. Now the next concept is, next budget you can see is reallocation of resources. So reallocation of resources, again a very important point. Government try to give social welfare or public welfare. The governments aim to give public welfare and also profit maximization. So for the both these two aim, government use taxes and subsidies for this purpose. Also, government gave benefit for the poor section of the society. This is again the reallocation of resources. So government give generally direct support to people and also imposing more taxes on the rich section of the society. So this is the reallocation of resources. Again, government wants to have more and more benefit for the poor section of the society. For this, government earns from its various sources from the rich people. Now, economic stability. So government always wants to have stability in the economy, such as इन्फ्लेशन डू नॉट राइज. आपका जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या फिर डिफ्लेशन आए, ये कंडीशन राइज नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन स्टेबल बनी रहनी चाहिए. लाइकवाइज गवर्नमेंट वांट्स टू हैव, डू नॉट वांट दैट अनएम्प्लॉयमेंट शुड इंक्रीज. फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, नॉट टू बी इंक्रीज. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ना हो, जो है उसको डिक्रीज करने का गवर्नमेंट का एम होता है. तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है. गवर्नमेंट चाहती है कि उसका डेफिसिट इंक्रीज ना हो, डेफिसिट नॉट टू बी इंक्रीज. गवर्नमेंट के और डेफिसिट्स हैं वो नहीं बढ़ने चाहिए. तो दिस इज गवर्नमेंट्स एम फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नाउ द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. So there are large number of public sector industries. There are the many industries which are owned and governed by the government sector, such as railway, postal and telegraph. So for these kind of industries, governments try to manage these for the social welfare of the people.
Budget is also prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing them financial help. So government wants to have more power in the economy for operating the public enterprises. So generally, the services which are very important for the nation are owned by the government sector, such as railway. अब रेलवे हमारा गवर्नमेंट चलाता है, इसका पूरा मैनेजमेंट करना। इसी तरह से हमारे पास कुछ सेक्टर्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको गवर्नमेंट मैनेज करता है। लाइकवाइज एटॉमिक पावर है, ये सब हमारे गवर्नमेंट हैं। वेपन्स हैं, ये सब गवर्नमेंट उसको मैनेज करती है, पब्लिक एंटरप्राइज। एंड ऑल्सो एम government wants to have to reduce poverty, reduce unemployment and regional disparity. So these are also the government's objective. Now students, to learn in a better way, look at the government's total scheme for the income and expenditure. So definition you can see here is, look at this, it is annual statement of receipt and expenditure of the fiscal year. It has governments का, अब देखो पैसे कहां से आएंगे, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू में ये पॉइंट्स हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल, इन सब की डिटेल में आपको बताता हूं। तो अब देखिए किस तरह से ये फ्लो चार्ट्स है, इसको आपने समझना है। रेवेन्यू रिसीप्ट में बेटे आता है टैक्स एंड नॉन टैक्स, फिर डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैपिटल रिसीप्ट सच एज डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग एंड सेल ऑफ पब्लिक एंड प्रॉपर्टी। ये आपके पास ओवरऑल है। अब आप देखिए, मैं इसको एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज capital receipts and capital expenditure? So very important concept is capital receipts. So what are the capital receipts? So to know this concept, you have to learn capital receipts. So listen, capital receipts. Capital receipts are those receipts which neither create liability nor reduce assets. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा कोई भी पैसा जो गवर्नमेंट को मिले बट उससे कैपिटल रिसीप्ट्स, आइदर, नाइदर नहीं बेटे, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आइदर और आएगा इधर, सॉरी, आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग। अब गवर्नमेंट ने अगर बोरोइंग ली है तो क्या हो गया, उससे बेटे उसकी एसेट्स, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, लायबिलिटी क्रिएट हुई है, उसको वो अमाउंट वापस भी करना है प्लस इंटरेस्ट भी वापस करना होगा। अगर इसी तरह से हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा, उसकी एसेट्स रिड्यूस हो जाती है, एसेट्स रिड्यूस हो गई है, इसका मतलब उसके पास जो संपत्ति थी वो पहले कंपेयर में कुछ कम हो गई है। तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर कैपिटल रिसीप्ट्स। दीज आर नॉन रिकरिंग, ये बेटे नॉन रिकरिंग होते हैं, ये नॉन रिकरिंग होते हैं आपके पास कैपिटल रिसीप्ट्स। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस पैसे को खर्च करती है अगर, तो वो आते हैं एक्सपेंडिचर के फॉर्म में।
किस तरह से? तो बनता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लुक एट दिस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंडिचर्स विच आइदर create assets or reduce liability। तो या तो गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो जाए, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिससे आपकी एसेट्स क्रिएट होती है, या फिर लायबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन, अगर गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाने पे पैसा खर्च किया है तो उसकी क्या हो रही है बेटे, यहां पर एसेट्स क्रिएट होती है, एसेट्स राइज हो रही है। अगर इसी तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सपोज करो रीपेमेंट ऑफ लोन किया, रीपेमेंट ऑफ लोन, इससे क्या हुआ, उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो इस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, या तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाए या आपकी एसेट्स बढ़ जाए। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपने इसको समझने हैं। फिर आता है रिवेन्यू रिसीप्ट। तो रिवेन्यू रिसीप्ट ऐसा कोई पैसा जो सरकार को मिले जिससे कि अभी जो मैं आपको पहले बताया था वो इसमें आएगा, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। ऐसे पैसे को रिवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। इसमें कौन कौन से पैसे हो सकते हैं? तो आता है टैक्स एंड नॉन टैक्स। तो रिवेन्यू रिसीप्ट में टैक्स का पैसा आता है और दूसरा नॉन टैक्स का पैसा आता है। टैक्स में तो बेटे टैक्स एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? तो आप डायरेक्टली पे करते हैं और इसका बर्डन एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी एंड बर्डन सेम पर्सन पे होता है। डायरेक्ट टैक्सेस बेटे प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। दैट मींस इनकम टैक्स रेट राइज होगा अगर आपकी इनकम भी राइज होगी तो, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और ये सब आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द लायबिलिटी एंड बर्डन are on different persons. These are regressive in nature. That means rate of tax decrease with increase in income. That means अगर आप ज्यादा पैसा कमाएंगे तो rate of tax decrease हो जाएगा। For example, GST, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैसे तो अब उसमें आ गया है, जीएसटी में आ गया है, ठीक है। और ये सब आपके पास इसमें आते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, ये सब इसमें आएंगे। देन नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू here interest received on loans given by government to state, ये आपके पास नॉन टैक्स रिवेन्यू है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस, इस तरह के एग्जांपल आपके नॉन टैक्स। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कि फाइन्स एंड पेनल्टी, डिविडेंड, प्रॉफिट, ग्रांट्स, एस्चीट एंड स्पेशल असेसमेंट। ये सब एग्जांपल्स हैं आपके नॉन टैक्स रिवेन्यू के। सो आपको ये टैक्स और नॉन टैक्स दोनों के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। सो लुक एट दिस फ्लो चार्ट हियर। आप देखिए, सबसे पहले है आपके पास रिवेन्यू रिसीप्ट। तो अभी मैंने बताया रिवेन्यू रिसीप्ट क्या है, रिकरिंग होते हैं। लुक एट दिस, रिकरिंग एंड नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस, नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। दो कैटेगरी आती हैं, एक है आपके पास टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने इसके एग्जांपल दिए हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस हैं। बर्डन एंड लायबिलिटी रिमेन्स ऑन सेम पर्सन। लुक एट दिस, सेम पर्सन पे बर्डन लायबिलिटी होता है, और इस पे बर्डन जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हो। एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, वैट, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। नॉन टैक्स में फाइन्स एंड पेनल्टी, एस्चीट, प्रॉफिट, गिफ्ट एंड ग्रांट्स एंड फीस एंड लाइसेंस फीस। बट एक एस्चीट वर्ड आ रहा है, पहले भी आया था। तो एस्चीट का मीनिंग होता है जब कोई व्यक्ति बिना अपने वारिस के, उत्तराधिकारी के, वसीयत के मर जाता है
उसकी प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाना, इस प्रोसेस को एस्चिट बोला जाता है। अब बात की मैंने फिर कैपिटल रिसीव्ड जो सरकार को मिलता है, कैपिटल रिसीव्ड वो आपके पास नॉन रिकरिंग होता है, इससे क्रिएट लायबिलिटी और एसेट्स डिक्रीज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरोइंग उधार लेना, या अपनी प्रॉपर्टी को सरकार सेल कर, फिर सरकार उस पैसे को एक्सपेंड करती है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर में दो कैटेगरी हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होते हैं, नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। बेटे याद करना पड़ेगा, नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, और ये आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी। इस और भी कैटेगरी है इसमें, प्लांट, नॉन प्लांट, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, इसको आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स, there are the deficits. There are the many deficits, but for your exam point of view, the first one is revenue deficit. So formula for revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt. So revenue deficit is revenue expenditure minus revenue receipt. तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीप्ट दोनों आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। अब इस रिवेन्यू डेफिसिट की इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इकोनॉमी में? तो इंप्लीकेशंस मींस क्या क्या इसकी प्रॉब्लम्स होती है। तो बेटे क्या करती है ये गवर्नमेंट के, आप बताती है कि गवर्नमेंट इनेबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, की सरकार इनेबल है अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने में। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे और उस पर बर्डन बढ़ेगा बोरोइंग का, ये इसकी मेन इंप्लीकेशंस है। तो दूसरा है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीप्ट्स माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स। और भी इसका फॉर्मूला है, दिस इज ऑलवेज बी इक्वल्स टू बोरोइंग, so your fiscal deficit is always be equals to borrowing. Now primary deficit, formula for primary deficit is fiscal deficit minus interest payment. ये आप तीन फॉर्मूले याद कर लेना, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके पास है मैरिट्स बैलेंस्ड बजट क्या होता है। तो बेटे पहले तो जानो बैलेंस्ड बजट का मीनिंग होता है कि इफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू टोटल रिसीप्ट्स, सरकार ने जितना पैसा खर्च करना है उतना ही उसको मिला है, अगर वो इक्वल रहती हैं तो बैलेंस्ड बजट है। जैसे मान लीजिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए साल में खर्च करने का फैसला लिया और सरकार को 1,000 करोड़ रुपए ही मिलने वाले हैं, तो दिस काइंड ऑफ बजट इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड बजट। अब इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इसके भी अपने मेरिट्स हैं। सबसे पहले कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है, सरकार कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करती, यानी कोई फिजूल खर्ची सरकार नहीं करेगी। पर इसके डिमेरिट्स भी हैं कि इससे आपकी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट होती है, आप नया कुछ नहीं सोच पाते, और आपकी इससे प्रोग्रेस है वो भी हैम्पर्स होती है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर आप जितना कमाएंगे उतना ही खर्च कर देंगे तो बेटे ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। फिर है आपके पास फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट के अपने मेरिट्स हैं। पहला है कि अ डेफिसिट बजट, डेफिसिट बजट में क्या होगा, एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अगर आप डेफिसिट बजट यूज करते हैं तो आप ग्रोथ को एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आप वेलफेयर स्कीम को भी लागू कर सकते हैं आगे पैसा खर्च करके। नुकसान है
कि इससे फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बनती है और सरकार वेस्टफुल एंड इननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर देती है। तो कई बार सरकार फ्री की ऐसी स्कीम दे देती है जो कि वो उसके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर सरकार पे बढ़ते हैं, तो फ्यूचर में ग्रोथ हैम्पर होती है। कुछ बेटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, जैसे बजट। तो बजट की डेफिनेशन मैंने बताई, बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing estimated receipt and estimated expenditure for the coming fiscal year। तो पॉइंट टू बी नोटेड, आने वाले साल के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज नॉन टैक्स रिसीप्ट। तो ऑल रिवेन्यू रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट अदर देन टैक्स, जो टैक्स को छोड़कर जो भी सरकार के पास पैसा आया है रिवेन्यू रिसिप्ट में, वो आपके पास नॉन टैक्स रिसिप्ट कहलाते हैं। और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? दोज रिसिप्ट्स नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स, तो दीज आर कॉल्ड रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं बेटे? तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which either create liability or reduction in the assets। एग्जाम्पल्स देख लीजिए थोड़े से। नॉन टैक्स, तो बेटे नॉन टैक्स के एग्जाम्पल्स हैं इंटरेस्ट, फीस, इस तरह के। कैपिटल रिसिप्ट के सोर्सेज क्या हैं? मैंने बताया था, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन। लाइकवाइज रिवेन्यू डेफिसिट के एग्जाम्पल्स, तो रिवेन्यू डेफिसिट की पहले डेफिनेशन है, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिवेन्यू रिसीव्ड। तो अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रिसीप्ट से ज्यादा होती है रिवेन्यू में, तो रिवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग को छोड़कर सारी माइनस करेंगे तो आपके पास जिस फिस्कल डेफिसिट आएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, काफी इंपॉर्टेंट है एक नंबर में, कि व्हाई रिपेमेंट ऑफ लोन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने रीपेमेंट की है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? क्यों? क्योंकि बेटे इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। लाइकवाइज व्हाई रिकवरी ऑफ लोन ट्रीटेड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी वही है, रिडक्शन इन दी एसेट्स। बैलेंस्ड बजट क्या होता है? तो मैंने कहा इक्वल हो, अगर सरकार की रिसीप्ट और सरकार के एक्सपेंडिचर बराबर होंगे तो वो बैलेंस्ड बजट कहलाएगा। लाइकवाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट विच क्रिएट्स एसेट्स एंड विच रिड्यूस लायबिलिटी। एक एग्जांपल आप देखिए, न्यूमेरिकल एग्जांपल है, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बनता है प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो प्राइमरी डेफिसिट गिवन है 25,000 और इंटरेस्ट पेमेंट है 15,000, दोनों को प्लस करके आपका आंसर 40,000। लाइकवाइज टैक्स क्या होता है? टैक्स बेटे कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट इंपोज करती है पीपल पे। डायरेक्ट टैक्सेस जो पीपल डायरेक्टली पे करते हैं, और प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस होता है फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेड का। इसी तरह से कुछ आप और नॉलेज के लिए क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे गवर्नमेंट करती है, तो आप इसको स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट कैसे करती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम में आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, तो नॉलेज आपकी होनी जरूरी है। लाइकवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंसेस के। तो रिवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट में डिफरेंस, तो मैंने बताया था आपको, जैसे these receipts do not create any liability and these create liability for the government। these do not create cause any reduction in assets, सरकार की एसेट्स नहीं कम होती और इससे एसेट्स डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल टैक्स एंड यहां है लोन बाय गवर्नमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। लाइकवाइज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो revenue expenditure do not cause any increase in government assets, and capital expenditure these cause increase in government expenditure assets। these are do not cause any reduction in liability, और ये liability में रिडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल है ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट और यहां है रीपेमेंट ऑफ लोन बाय गवर्नमेंट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस है बेटे, तो डायरेक्ट टैक्सेस इज अ टैक्स हुज लायबिलिटी टू पे एंड इंसिडेंस लाई ऑन सेम पर्सन। तो यहां पर आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, यहां पर क्या है, डू नॉट लाई ऑन सेम पर्सन, ये आप शिफ्ट चेंज कर सकते हो। ये कैन नॉट शिफ्टेड और ये आपके शिफ्ट कैन बी शिफ्टेड होते हैं। तो ये इनकम टैक्स होता है
ये प्रोडक्शन टैक्स, जीएसटी टैक्स, इस तरह के टैक्सेस इसमें हो सकते हैं। कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे बजट रिसिप्ट क्या होती है, तो टोटल जितनी भी एक साल में सरकार को रिसिप्ट मिलती है वो सारी बजट रिसिप्ट ही कहलाती है। और यहाँ पर यह है कि बोरोइंग जितनी होगी उतना ही आपका बेटे फिजिकल डेफिसिट होगा, तो 50,000 ही फिजिकल डेफिसिट है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, वो दूसरों से करवाती है, वो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है, अपनी सिक्योरिटीज को भी सेल ऑफ कर देती है, शेयर सेल करती है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है, तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट मींस इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर लोन्स हैव कंपेल्ड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो। तो सरकार ने पहले के अगर लोन ले रखे हैं तो उसको अब वो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। लाइकवाइज revenue receipts are treated as legally compulsory payment imposed on people by the government. Give example. तो टैक्सेस जो हैं वो आपको जरूर देने पड़ते हैं, वही आपके रेवेन्यू रिसीप्ट हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसको देने हैं उसी में लाएंगे। तो बेटा इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इनकी स्टडी करेंगे। और 1 मार्कर क्वेश्चंस मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको कोई भी हमें चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको वो शेयर कर देंगे। कुछ और भी क्वेश्चन हैं, आप देखिए, जैसे इसको स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। क्लासिफाई है बोरोइंग में और रिकवरी ऑफ लोन में। फिर एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल हैं। लुक एट दिस अगेन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये लुक एट दिस। जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट मींस गवर्नमेंट हैज टू रिसोर्ट बोरोइंग ओनली टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर उसने ऐसा किया है तो दैट मींस जीरो प्राइमरी डेफिसिट। तो बजट में आज इतना ही है, आप इसको रिवाइज करेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।